A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm going to teach you second part of your chapter in the Kingdom of Fools. So my dear student, in first part we have studied about this particular chapter. हमने देखा कि एक जो चोर होता है, एक थीफ होता है, जो क्या करता है, एक मर्चेंट के हाउस में घुस जाता है और वहां जाकर वो चोरी करता है। और जैसे ही वो उस घर से बाहर निकलता है, सो द वीक वॉल फेल ऑन हिम एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो एक कमजोर दीवार होने की वजह से वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वो वही मर जाता है। एंड आफ्टर दैट द ब्रदर ऑफ दैट थीफ ही जस्ट अपील्ड द किंग टू पनिश द कल्प्रेट। तो उसके बाद जो थीफ होता है, उसका जो ब्रदर होता है, वो उसको बोलता है कि जो मेरा ब्रदर थीफ था उसके साथ गलत हुआ है, तो इसका पनिशमेंट उस मर्चेंट को मिलना चाहिए। सो आफ्टर दैट द किंग डिसाइडेड टू पनिश दैट मर्चेंट जिसके घर में चोरी हुई थी। सो ही वाज समन्ड टू द कोर्ट, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। एंड आफ्टर दैट द मर्चेंट सेड, My lord, this is not my fault. This is the fault of the bricklayer who constructed a weak wall. मतलब ये मेरा फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये तो फॉल्ट उस ब्रिक लेयर का है जिसने इस वॉल को कमजोर बनाया था। After that, the king summoned to the bricklayer and he was asked to come to the court, और उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। Now bricklayer was actually he has his own story. ब्रिकलेयर के पास उसकी खुद की स्टोरी होती है। He said, my lord, it is not my fault. It is the fault of a dancing girl who was coming up and down in the street and which distracted me a lot. And as a result, what happened? I constructed a poor or weak wall. माय लॉर्ड, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, बल्कि उस डांसिंग गर्ल का फॉल्ट है जो कि बार बार गली में आ रही थी, जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। एज ए रिजल्ट मुझसे एक बहुत ही, कह सकते हो, एक बहुत ही पुअर क्वालिटी की एक वॉल बन गई। सो आफ्टर दैट गर्ल, द डांसिंग गर्ल वाज समन्ड टू द कोर्ट एंड शी हैज हर ओन स्टोरी। उसके खुद की एक स्टोरी होती है। शी सेड, My lord, this is not my fault. This is not my fault. This is the fault of the jeweler. ये जो goldsmith का fault है, because I wanted him to just make some jewelry for me and he was giving me an excuses again and again, और वो मुझे excuses दे रहा था जिसकी वजह से I was coming and down in the street again and again. ये मेरा भी fault नहीं है। And after that गोल्डस्मिथ was summoned to the court. उसके बाद कोर्ट के अंदर किसको बुलाया जाता है? गोल्डस्मिथ को बुलाया जाता है। And Goldsmith said, my lord, this is not my fault. This is the fault of a merchant who was in hurry and he wanted me to just make this jewelry as soon as possible because he said there is a wedding coming in his family. So he just wanted me to make his jewelry. तो वो उसने मुझसे कहा कि आप मेरी ज्वेलरी बनाओ। तो इस वजह से मैंने इस जो लड़की की, जो डांसिंग गर्ल है, इसकी ज्वेलरी को मैंने एक बार इग्नोर कर दिया, एंड दैट इज व्हाई आई हैड टू गिव हर एक्सक्यूजेस, और इस वजह से मुझे इसको एक्सक्यूजेस देने पड़े। एंड after that king said, I think this is not your fault also. This is the fault of that merchant who just asked you to make his jewelry. So after that the soldiers just went to bring that merchant. Unfortunately, that merchant has already passed away. वो तो मर चुका था। And unfortunately, he was none other than but the father of that merchant, whose house has been robbed. मतलब वो जो मर्चेंट था जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए बोला था, वो कोई और नहीं बल्कि वही मर्चेंट के फादर थे जिसके घर पे अब चोरी हुई थी। And after that king said that actually now one has to be punished. किसी ना किसी को तो सजा मिलनी चाहिए, because an innocent man has died. एक शरीफ आदमी मारा गया है। And then king said that, so merchant whose house has been robbed said, you have to die. Why? Because we have to punish you, because you have inherited all the properties, wealth, riches, everything from your father. At the same time, you have to accept his sin also. मतलब आपने अपने फादर की सारी वेल्थ तो ले ली, लेकिन आपके फादर के जो सिन है,
आपके फादर के जो पाप हैं वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करने होंगे। एंड फाइनली द किंग अग्रीड टू पनिश द मर्चेंट। मर्चेंट को अग्री करता है कि तुम्हें ही क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी पनिश्ड, कि तुम्हें पनिश किया जाएगा। एंड बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट the sin of your father because you inherited everything from your father, क्योंकि आपने सारी की सारी चीजें अपने फादर से इनहेरिट की है, विरासत में मिली है, तो ये पाप भी तुम्हें विरासत में मिले हैं। सो देयरफॉर यू हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें पनिश किया जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं आगे क्या स्टोरी में क्या होता है। इसके बाद देखो, एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड, और उसके बाद राजा जो होता है वो क्या करता है, आदेश देता है क्या करने के लिए, एक न्यू स्टेक। स्टेक क्या होता है, जहां पर फांसी के लिए टांगा जाता है, तो एक स्टेक बनाने के लिए बोलता है टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी के लिए एक स्टेक बनाने के लिए बोला जाता है, राजा आदेश देता है। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, शार्पन का मतलब धार करना, स्टेक, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल। गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग। इम्पालिंग का मतलब यहाँ पर कह सकते हो उसको टांगने के लिए, कल्प्रिट को टांगने के लिए वो स्टेक को तैयार कर लेते हैं जहां पे फांसी के लिए टांगा जाता है। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, तभी मिनिस्टर के दिमाग में आता है दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, जो जिसको फांसी दी जानी थी, जिस मर्चेंट को सजा मिलनी थी, समहाउ टू थिन, वो थोड़ा दिखने में क्या था, पतला था, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन दिस स्टेक, मतलब जिस स्टेक के अंदर उसको फांसी दी जानी थी वो स्टेक कहीं ना कहीं उसको खुला था, और जो मर्चेंट था वो कहीं ना कहीं वीक था। he appealed to the king some common sense, he appealed to the king common sense and the king was worried about it। और उसके बाद मिनिस्टर क्या करता है, ये बात राजा को बताता है कि जो ये स्टेक है कहीं ना कहीं मर्चेंट को फिट नहीं आएगा, और राजा भी इस बात को लेकर चिंतित हो जाता है। तो राजा बोलता है व्हाट शैल वी डू, ही सेड, राजा बोलता है कि अब हम क्या करें। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। उसके बाद राजा बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो राजा बोलता है कि हमें शायद किसी ना किसी एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इतना फैट है कि वो स्टेक के अंदर अच्छे से फिट हो जाए, तो यानी एक ऐसा आदमी हमें ढूंढना होगा। द सर्वेंट वर इमीडिएटली, जो उसके नौकर होते हैं, द सर्वेंट वर इमीडिएटली, जल्दी से, सेंट फॉर ऑल ओवर द टाउन, और वो पूरे के पूरे टाउन के अंदर ढूंढते हैं एक ऐसा आदमी जो उस पर्टिकुलर स्टेक के अंदर फिट आ जाए। लुकिंग फॉर मैन, एक ऐसे आदमी के लिए who could fit the stake, जो कि उस स्टेक के अंदर प्रॉपर्ली फिट आ सकता था। And their eyes fell on the disciple, और तभी उसकी नजर उस चेले के ऊपर पड़ती है जो कि अपने गुरु के साथ आया था, जो लालच की वजह से इस टाउन के अंदर रुक गया था। Who had fattened, जो कि मोटा हो चुका था, himself, जो कि बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, for months on bananas, क्योंकि बहुत महीनों से उसने केले खाए थे, राइस चावल खाया था, वीट गेहूं खाया था, और घी खाया था, और इतना सारा खाकर वो क्या हो गया था, हट्टा कट्टा भारी भरकम मोटा हो गया था। तो अब मतलब सोल्जर्स की जो सर्वेंट्स थी उसकी नजर किसके ऊपर पड़ती है, उस डिसाइपल के ऊपर, यानी उस चेले के ऊपर पड़ती है। व्हाट आई हैव डन, आई एम इनोसेंट। उसके बाद जो सर्वेंट होते हैं वो उस डिसाइपल को पकड़ लेते और कहते हैं, डिसाइपल बोलता है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया है। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूं। ही क्राइड, डिसाइपल बोलता है, दैट मे बी ट्रू बट, मतलब वो कहते हैं दैट मे बी ट्रू, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, बट इट इज द रॉयल डिक्री। डिक्री का मतलब होता है लीगल ऑर्डर। तो ये क्या है, एक लीगल ऑर्डर है, राजा की तरफ से एक ऑर्डर आया है दैट वी शुड फाइंड अ मैन, हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है, फिट इनफ, जो इतना मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो कि स्टेक के अंदर आसानी से फिट हो जाए। दे सेड, वो कहते हैं, मतलब जो सर्वेंट्स हैं, एंड कैरिड हिम, और उसको लेकर जाते हैं टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उस जगह पे लेकर जाते हैं जहां पर फांसी दी जानी होती है। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरु, और उसके बाद वो अपने जो उसके जो वाइज गुरु, जो कि समझदार उसके जो गुरु थे, किसके, उस डिसाइपल के, उसके शब्द उनको याद आते हैं, किसको, डिसाइपल को याद आते हैं। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, उसके गुरु ने कहा था कि अपने चेले को कि जो शहर है ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ आगे वो क्या करेंगे। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर हिज डेथ, जब मतलब
चेला अपनी डेथ के लिए वेट कर रहा था, मतलब उसको पता था भी उसका मरना तय है। ही प्रेयर टू हिज गुरु, तो मतलब क्या करता, वो प्रार्थना करता, अपने गुरु को प्रार्थना करता है इन हिज हार्ट, अपने दिल के अंदर, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और उम्मीद करता है कि मेरे गुरुजी मेरे इस दर्द को, मेरे इस दुख को सुनो, क्योंकि वो रो रहा होता है और उसके गुरु तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता है। Whenever he was, wherever he was, आप जहां कहीं भी हो मेरी आवाज को सुनो। कौन बोलता है? चेला। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, विजन मतलब किसी चीज को देखना, यानी अपनी दिव्य शक्ति के जरिए जो गुरु होता है अपने चेले को देख लेता है कि उसका जो चेला है वो क्या है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। ही हैड मैजिक पावर, क्योंकि गुरु के पास जादुई शक्ति होती है। एंड ही कुड सी फार एंड कुड सी फ्यूचर एज, मतलब उसका जो गुरु था वो क्या देख सकता, दूर तक देख सकता था, भविष्य को देख सकता था। एंड ही कुड सी हिम, सी द प्रेजेंट, वो वर्तमान को भी देख सकते थे गुरुजी, एंड द पास्ट, और पास्ट को भी देख सकते थे, उनके पास दिव्य शक्ति थी। He arrived at once to save his disciple, और उसी वक्त जो गुरुजी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डिसाइबल को बचाने के लिए उस टाउन में पहुंच जाते हैं। Who got himself into such a scrap through love, scrap का मतलब ऐसी सिचुएशन में फंसा लेता है just through love of food, मतलब जो ग्रीड ऑफ फूड कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब खाने के चक्कर में जो चेला है उसने अपने आपको ऐसी एक बैड सिचुएशन में फंसा लिया था कि अभी हो सकता था कि वो मारा जाए। As soon as he arrived, और जैसे गुरुजी मतलब उस टाउन के अंदर पहुंचते हैं, he scolded the disciple, और वो आते ही क्या करता है, अपने डिसाइपल, अपने चेले को स्कोल्ड करता है, and told him, और कहता है something in whisper, और उसके कानों में धीरे से कुछ बोलता है। whisper का मतलब कानों में बोलना, धीरे से। Then he went to the king, और उसके बाद वो किंग के पास जाता है, राजा के पास जाता है, and address, और कहता है him, राजा को बोलता है, ओ wisest king, सबसे बुद्धिमान किंग, हु इज ग्रेटर, कौन ग्रेट है मुझे बताओ, बड़ा कौन है, द गुरु और डिसाइपल, मतलब हम दोनों में से बड़ा कौन है, गुरु बड़ा है या चेला? तो यहाँ पर ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क मी, तो यहाँ पर राजा बोलता है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पुट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है गुरु ही बड़ा होता है ना। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं जो गुरु होता है ये उसकी प्लानिंग होती है, तो कहते हैं अगर गुरु बड़ा है तो सबसे पहले मुझे इस फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। पुट माई डिसाइपल डेथ आफ्टर मी, यानी मेरे डिसाइपल को, मेरे चेले को मेरे मरने के बाद इस पे स्टेज पर चढ़ाया जाए। मैं बड़ा हूं, और आपने भी कहा कि गुरु बड़ा होता है, तो सबसे पहले मुझे स्टेज के ऊपर चढ़ाया जाए और मेरे मरने के बाद मेरे डिसाइपल को। When the disciple heard this, और जब मतलब जैसे ही मतलब जो उसका चेला होता है, when the disciple heard this, जैसे उसका चेला इस बात को सुनता है, he understood, वो समझ जाता है, and began to clamor, clamor का तो शोर करने लग जाना, तो उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है, कहीं ना कहीं गुरु की प्लानिंग है, वो उसको बचाना चाहता है, तो शोर करने लग जाता है, मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे टांगो, यू बॉट मी हियर फर्स्ट, तो चेला यहाँ पर शोर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आप मुझे सबसे पहले यहाँ पर लेके आए थे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, यानी पहले गुरु को नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर क्या करो, पहले मुझे इस स्टेज के ऊपर टांगो, पहले मुझे आप लेकर यहाँ पर आए थे। एंड द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गो इनटू फाइट, और उसके बाद जो गुरु और जो चेला होता है दोनों क्या होते हैं, फाइट में चले जाते हैं, यानी दोनों में फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, इस बात को लेकर कि पहले कौन स्टेज पर जाएगा, पहले किसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड, जो राजा होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है बाय दिस बिहेवियर, यानी जो गुरु और चेले के इस तरह के बिहेवियर को देखकर जो राजा होता है वो भी पजल्ड हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु, और गुरु से कहता है why do you want to die, मतलब आप लोग मरना क्यों चाहते हो, we chose him because we needed him, a fat man for the stake, मतलब आप गुरु को बोलते कि आप क्यों मरना चाहते हो, हमको तो एक ऐसा आदमी ढूंढना था जो कि स्टेक में फिट हो जाए, और जो डिसाइपल है वो बिल्कुल फिट है, फेट इनफ है, जो कि स्टेक में आ सकता है, तो गुरुजी आप क्यों मरना चाहते हो, ठीक है, आप क्यों मरना चाहते हो, मुझे समझ से बाहर है मेरे, तो यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि आपको मुझसे ये क्वेश्चन पुट नहीं करना चाहिए, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मारो आप। रिप्लाई द गुरु, गुरु रिप्लाई करता, गुरु बोलता है कि आपको ये क्वेश्चन मुझसे पुट नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले मुझे मारो।
तो यहाँ पे why there is some mystery here, तो यहाँ पर मतलब क्या कहता है, why there is some mystery है, तो राजा बोलता है क्या इसके अंदर कोई रहस्य है, there is some mystery, as a wise man you must make me understand, मतलब आपको मुझे इस चीज को समझाना चाहिए। तो यहाँ पर राजा बोलता है किसको, गुरु को बोलता है क्या यहाँ पर कोई रहस्य है क्या, जो आप दोनों लड़ाई कर रहे हो कि मुझे पहले फांसी पे टांगा जाए, तो मतलब एज ए वाइज मैन, एक समझदार आदमी होने के नाते गुरुजी आपको मुझे समझाना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है देखते हैं, विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु, गुरु बोलता है चलो ठीक है राजा जी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, जैसे मैं आपको ये बता देता हूं, क्या मुझे इस बात का प्रॉमिस करते हो कि सबसे पहले आप मुझे डेथ दोगे, यानी सबसे पहले मुझे मारोगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलमन वर्ड, सॉलमन मतलब सीरियस होता है, वैसे राजा अपने शब्द उसको देता है, यानी अपना प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं अपने शब्दों को रखूंगा और मैं तुम्हें सबसे पहले क्या दूंगा, फांसी दूंगा, यानी तुम्हें मौत दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड, जो गुरु होता है वो राजा को साइड में लेकर जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट से थोड़ा दूर, ईयर शॉट कान के अंदर, विस्पर धीरे से बोलता है, टू हिम राजा को बोलता है, डू यू नो, क्या आपको पता है, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं, द टू ऑफ अस, हम दोनों में से, वी हैव बीन ऑल, we have been, give me 1 second beta, yes, wait for 1 second. One second. Okay. 1 second. Yes, let us start now. Do you know why we want to die right now? तो उसके बाद राजा बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं राइट नाउ, अभी की अभी, द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, कि हमने कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन हमें ना तो ऐसा एक राजा मिला, तुम्हारे जैसा कोई राजा मिला है, और ना ही हमें इस पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा शहर मिला है। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो फांसी का जो फंदा है ना, ये स्टेक जो बनाया है, ये भगवान का फंदा है, मतलब ये जस्टिस, न्याय का फंदा है, भगवान के न्याय का फंदा है ये। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड बीन, इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और ये जो स्टेक है बिल्कुल नया स्टेक है, और इसके ऊपर किसी भी अपराधी को अभी तक नहीं चढ़ाया गया इस स्टेक के ऊपर। Whosoever dies on it first will be reborn as the king of the country, और जो पहले इस स्टेक के ऊपर चढ़ेगा, जिसको इस स्टेक के ऊपर सबसे पहले लटकाया जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो जन्म लेगा एक राजा के तौर पर इस कंट्री का, दोबारा से वो एक राजा बनकर पैदा होगा। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country, और जो दूसरे नंबर पर मतलब जिसको स्टेक पे चढ़ाया जाएगा, वो क्या बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, एसेटिक का मतलब सन्यासी, और वो कहता है कि हम जो है ना, हम इस सन्यासी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, एंड इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए व्हाइल, और हम क्या करना चाहते हैं, हम एक राजा और एक मिनिस्टर की जिंदगी जीना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब तुम अपने शब्दों को रखना, राजा को बोलता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप अपने शब्दों पे कायम रहना, माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को डेथ दे दो अभी, एंड मी फर्स्ट, पहले मुझे, रिमेंबर, पहले मुझे और मेरे बाद किसको, मेरे डिसाइपल को। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू ए डीप थॉट, इसके बाद जो राजा होता है वो गहरी सोच में पड़ जाता है। ओके, ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम, क्योंकि वो उस राज्य को खोना नहीं चाहता था, टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो अगले जन्म में भी वो राजा ही बनना चाहता था, और वो इस राज को नहीं खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था, सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, और उसने क्या किया, जो फांसी थी वो अगले दिन तक उसको पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया। एंड टॉक्ड इन द सीक्रेट विद द मिनिस्टर, और वो मिनिस्टर से बात करता है सीक्रेटली, एंड इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ,
और वो अपने मिनिस्टर से बात करता है जो गुरु ने उसको बताया था, और कहता है कि ये अच्छा नहीं होगा कि हम इस किंगडम को दूसरों के हाथों में दे दें। राइट, वो पूरी कहानी बताता है। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ। तो वो कहता है कि नहीं, हमें इस राज्य को बचाना होगा, तो हम क्या करते हैं, उस स्टेक के ऊपर खुद ही हम क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन। और हमारा जन्म कैसे होगा, हमारा जन्म एक राजा और एक मिनिस्टर की तरह दोबारा से हो जाएगा, अगर हम उन गुरु और चेले के बजाय अगर हम उस स्टेक के ऊपर खुद चढ़ जाते हैं और फांसी, मतलब हम अगर फांसी पे चढ़ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगले जन्म में भी राजा और मिनिस्टर बनकर ही जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। और जो मतलब क्या होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, राजा बोलता है, एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मिनिस्टर होते हैं वो राजा की बात से सहमत हो जाते हैं। सो ही डिड द एग्जीक्यूशनर्स, जो फांसी देने वाले होते हैं एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। और कहता है कि जो अपराधी हैं उनको आज रात आपके पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जैसे ही पहला आदमी आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले उसको क्या देना, मार देना, उसको उसको सूली पे चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और उसके बाद दूसरा जो आदमी आए उसको भी सूली पे चढ़ा देना। एंड दोज आर ऑर्डर्स, और ये आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, और कोई किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात जो राजा होता है और उसके जो मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, सीक्रेटली रहस्यमय तरीके से वो जेल में चले जाते हैं, प्रिजन में चले जाते हैं। एंड रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, और उसके बाद क्या करते हैं, वो गुरु और चेले को वहां से रिलीज कर देते हैं और खुद जेल में चले जाते हैं। एंड डिस्गाइज, अपने आप को बेहरूपिया बना लेना, अपना रूप छुपा लेना। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और वो उनकी जगह पे, मतलब गुरु और चेले की जगह पे वो जेल में आ जाते हैं। एज अरेंज बिफोर हैंड, जैसा कि पहले सारी चीजों को अरेंज किया गया था। विद लॉयल सर्वेंट, सर्वेंट को बताया गया था कि इस तरीके से आपको फांसी देना है। वर टेकन टू द स्टेक, उसी तरीके से उनको सूली पर ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से मतलब राजा और जो मिनिस्टर था उनको क्या कर दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। राइट, 1 सेकेंड। When the bodies were taken down, और जिस वक्त उनकी जो डेड बॉडीज उनको नीचे उतारा गया, टेकन डाउन टू द थ्रोन टू क्रॉस, मतलब उतारने के लिए किनको, जो कौवे वगैरह थे, जो वल्चर्स, वल्चर्स मतलब बाज वगैरह थे, ईगल थे। द पीपल पैनिक्ड, उसी टाइम के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जैसे डेड बॉडी को उतारा गया, जिससे कि जो कौवे वगैरह हैं या ईगल वगैरह उसको खा लें, तो लोग देख कर डर जाते हैं कि यार ये तो डेड बॉडीज किसकी है, ये तो किंग की, और किसकी है ये डेड बॉडी, ये तो किंग की है और मिनिस्टर की डेड बॉडी है। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, और वो देखते हैं कि किस तरीके से मतलब जो राजा और उसका जो मिनिस्टर है उनकी डेड बॉडीज उनके सामने थी। किसके सामने, प्रजा के सामने। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा का पूरा शहर अब क्या था, कंफ्यूजन के अंदर था। पूरा का पूरा शहर के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ था। ऑल नाइट, पूरी की पूरी रात, दे मॉर्न, मॉर्न का मतलब शोक मनाना, मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और मतलब जो पूरी की पूरी प्रजा होती है वो सोचती है इस बात को लेकर, इस बात को लेकर दुख बनाते हैं कि हमारा जो राजा था, हमारा जो मिनिस्टर था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस राज्य को कौन संभालेगा, हमारे राज्य का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु, तभी कुछ लोगों के दिमाग में आता है गुरु के बारे में, एंड द डिसाइपल, चेले के बारे में। एंड कॉट अप, उनको पकड़ कर लाते हैं। देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उसी वक्त क्या थे जो राजा, जो गुरु था और जो डिसाइपल था, वो इस पर्टिकुलर टाउन को छोड़कर जा रहे थे अननोटिस, बिना नोटिस हुए, मतलब बिना किसी को पता चले वो यहाँ से निकलना चाहते थे। वी पीपल नीड अ किंग, वो कहते हैं कि हमें एक राजा की जरूरत है और एक मिनिस्टर की भी जरूरत है हमें यहाँ पर, इस किसके अंदर, इस सिटी के अंदर। समवन अदर अग्रीड, दे बैक द गुरु एंड डिसाइपल टू बी द किंग एंड मिनिस्टर। और वो क्या करते हैं, राजा वो क्या करते हैं, गुरु और चेले से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप राजा और मिनिस्टर इस सिटी के बन जाओ। आई डिड नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यू द डिसाइपल, इट डिड नॉट, मतलब जहां तक मतलब डिसाइपल की बात है तो वो तो अग्री हो गया, उसको परस्यूट करना, उसको कन्विंस करना, मतलब उसको कन्विंस करने में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं करना पड़ा, तो डिसाइपल तो रेडी हो गया आसानी से। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन जहां तक गुरु की बात है, गुरु को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली गुरु भी इस बात के लिए रेडी हो जाता है। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम, और उसके बाद जो
जो गुरु और जो चेला होता है वो उस पर्टिकुलर सिटी के क्या बन जाते हैं, किंग। किंग तो कौन बन जाता है, गुरु बन जाता है, डिसाइपल मिनिस्टर बन जाता है, और फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ऑल लॉज। और वो इस कंडीशन पे उस सिटी के, उस शहर के, उस किंगडम के राजा बनने के और मिनिस्टर बनने के लिए तैयार होते हैं कि जो पुराने तौर तरीके उन्होंने लगाए हुए थे, दिन के टाइम वो सोते थे, रात के टाइम वो काम करते थे, और जितने भी मतलब सारे के सारे पुराने लॉज हैं उनको वो क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं। अब नाइट की जगह पे सोएंगे लोग और दिन में काम करेंगे, इस तरह की चीजें वहां पर वो चेंज कर देते हैं। इसी कंडीशन पे वो राजा और मिनिस्टर बनने के लिए तैयार होते हैं। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब के बाद नाइट वुड अगेन बी नाइट, जो नाइट थी वो नाइट की तरह यूज की जाती थी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन की तरह यूज किया जाता था। यानी नाइट सोने के लिए होती थी और दिन काम करने के लिए होता था। यू कुड गेट नथिंग फॉर डू। और अब पूरी की मतलब पहले क्या था, हर एक चीज का एक ही प्राइस होता था, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस भी डिफरेंट कर दिया। महंगी चीज के अलग अलग भाव होंगे, सस्ती चीज के अलग भाव होंगे, और हर एक चीज के अलग भाव होंगे। तो ये भी उन्होंने क्या था, एक जो लॉ था, एक कानून था, उसको भी गुरु और चेले ने बदल दिया। एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और उसके बाद वही जो फुलिश किंगडम था वो क्या हो गया, दूसरे किंगडम की तरह बन गया, जो एक आम किंगडम होता है उसकी तरह वो बन गया। और इस तरीके से मतलब जो गुरु और चेला, यानी गुरु जो है अपने विजडम को यूज करके अपने डिसाइपल को बचा लेता है, और जो किंग और जो मिनिस्टर जो कि फुलिश थे, और वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी बिकॉज दे वर फुलिश, क्योंकि वो मूर्ख थे, राइट। So my dear student, this is all about from this chapter. I truly believe you have understood this chapter. So thank you so much and God bless you all. Stay happy and blessed. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.